So this was clear from yesterday's lecture that the engineering minus management जब हम करते हैं -9.28 to -4.72 ये रेंज आता है. यही हमने मैनेजमेंट माइनस इंजीनियरिंग किया होता तो 4.72 to 9.28 आया होता. Okay, so we'll move on. Now we have completed population variance known, the population variance known but assumed to be equal. So what we have completed is this was dependent. Okay, this pill example was dependent. Here the independent one is starting. The population variance is known. Okay, now we'll go for population variance unknown. Okay, this is over. Now this is there, this is there. Okay, so independent sample population variance known but assumed to be equal. So wait a second, I'll just open the Excel. Okay, yes, so confidence interval for a difference of two means independent samples variance unknown but assumed to be equal. So I'm talking about this second case. Sorry, I'm so talking about this second case. Okay, so here we have this formula. Yes, now we have this independent sample. Both are independent. दोनों इंडिपेंडेंट है. जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट था ये ऐसे इंडिपेंडेंट है. न्यूयॉर्क सिटी में एप्पल का रेट कितना है और लॉस एंजल्स में एप्पल का रेट कितना है, दोनों इंडिपेंडेंट है. इसका रेट बढ़ा या घटा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट. सो फर्स्ट स्टेप, what is the first step we need to find is we need to find the sample mean. Okay, I have done it for the reference so that I don't get missed out. The first step is sample mean. तो सैम्पल मीन मतलब एक्स बार ले लेते हैं सबसे पहले. सॉरी, एक्स बार. ओके, व्हाट वुड बी द एक्स बार? एवरेज. दिस वुड बी द थिंग. ओके, एंड वाई बार, व्हाट वुड बी द एवरेज फॉर दिस? Okay, so after this what we need to do is हमारे पास वेरिएंस अननोन है. हमारे पास वेरिएंस अननोन है. ठीक है, तो पिछली बार में क्या था, लाइक इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व्हाट हैपेंड वाज, वन सेकंड, वेयर इज दैट इंजीनियरिंग. हाँ, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था, मतलब वेरिएंस नोन था. इस केस में वेरिएंस कंप्लीटली अननोन है. ओके, तो हम ऐसे ही प्रोसीड नहीं कर सकते. ओके, सो वेरिएंस अननोन. So what would be the thing? Like then we have to calculate standard deviation, then population. Okay, okay, we'll do it. So now we have to calculate the standard deviation. Okay, so standard deviation of x, that means sigma x. I am talking about this symbol. There is no symbol over here, that's why I am putting sigma. This sigma means like this. ये वाले sigma x की बात करो. Okay, you understand? This is x. Okay, yes. So sigma x, what would be sigma x? That is the standard deviation of sample of this whole. Okay, and here we'll do sigma y. Standard deviation of sample of this whole. Okay, let us round it off so that it comes in the 2 decimal places. Okay, comma 2, it got rounded off. Okay, now same I'll be rounding it off this as well. This number comma 2 rounded off 0.27. Now I need to go with the formula that I have given over here. Okay, my standard deviation, that means my
हमारा फॉर्मूला आपको याद है ना सबको? लाइक इट वुड बी द reliability factor multiplied by standard error. And what is reliability factor? T score और Z score जो हमें मिलता है टेबल से जो हमें मिलता है इनटू स्टैंडर्ड एरर। इस केस में स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, हमें दोनों का सिग्मा पता नहीं है। ओके, वी डोंट हैव, हमें सिग्मा इसका पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, और सिग्मा इसका भी पता नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, ये फॉर्मूला है, यहाँ एस पी का स्क्वायर दिया हुआ है। what is SP? That is pooled standard deviation. So here the concept is called as pooled standard deviation. Okay, so how does it work? I'll just show you. That formula is there, this is the formula. Okay, ये formula आपको याद रखना है। Okay, you just take a method how to remember it, but this is a very very important formula. Okay, so now it is nx minus 1. That means I need to count the samples first. Okay, I need to count number of samples in X. So what will be my number of samples in X? Count of this. Okay, now what would be my samples in Y? Oh, I'm just putting samples in Y equals to count this. Okay, it is coming to 8. So my formula for pool standard deviation is nx minus 1 standard deviation of x का square plus ny minus 1 standard deviation of y का square upon standard deviation number of samples in x plus number of samples in y minus 2. I'll repeat the formula. This is the standard deviation for pool का square. That means it is standard variance बोल सकते हो आप, standard variance या फिर pool variance का pool बोल सकते हो. I'll just tell you variance of pool. Okay, consider this as variance of pool. Pool. पूल मतलब कंबाइन। ओके, दोनों का कंबाइन होकर के निकलता है। दिस इज वेरिएंस का पूल स्क्वायर। इसका अगर हम जब रूट निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ओके, दिस विल गिव मी स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, आई विल गो टू दैट एक्सेल अगेन। तो मुझे क्या करना है अभी? द फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, एन एक्स माइनस वन एस एक्स का स्क्वायर। ओके, so my nx is sample in x, that is 9. So I'll be putting the first formula, ये जो पहला वाला है उसको और इसको मैं ऐड करता हूँ। okay, so n is my 9. okay, multiplied by standard deviation of x का square. Oh, I did not put equal to sign. Okay, plus standard deviation of y multiplied by this का square. Okay, I'm getting 0.8019. हमें न्यूमरेटर मिल गया इसका। ओके, आई गॉट दिस न्यूमरेटर। यू डोंट लुक अबाउट दैट। ओके, विल कम टू दैट लेटर। ये न्यूमरेटर मिल गया मुझको, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस टू। ओके, डिवाइडेड बाय what shall I do? It is coming in between. Okay,
So now this is my numerator of the pooled variance का formula, ठीक है, उसका न्यूमरेटर मिल गया. अब ये डिनोमिनेटर, okay, denominator. So it is 10 plus 8 minus 2, okay, 16. Got it, 16. So I have to divide this by this. So now my pooled variance will be, how much will be my pooled variance? This divided by this, 0.05. That is my pooled variance. But I need to have pooled, one second, standard deviation. Okay, so that will be इसका root 0.5. Okay, इसका root आ गया 0.22. Okay, so let me just cross check whether I'm getting the same. Yes, we got the same. Okay, so now one second. Yes, perfect. So now our this thing is there. Standard deviation मतलब हमारा standard error तक तो मिल गया. Pooled standard deviation is nothing but standard error. Now we have to multiply it by reliability factor. So how do we proceed for that formula? So its formula is given by, this is the formula. Okay, this is the formula. One second. This is the formula. Okay, so x bar minus y bar plus minus, you look at this, the degree of freedom will be this thing. Okay, so now we'll go back over there, we'll mention the degree of freedom. You know why are we using t score? This should be z score or t score. Just tell me that. अब तो दिखा दिया, आप बोल दोगे आप. So t score will be used, right? So we'll be using the t score table. So t score आया तो फिर हमें degree of freedom चाहिए. Degree of freedom. And what is my degree of freedom? It is same as this. ये फॉर्मूला था ना, ये है ना, nx plus ny minus 2, same nx plus ny minus 2. Okay, so that is my formula. So degree of freedom will be 16. So now I have to open the t score table and go and check for 16. Okay, 16 and how much confidence interval, यहाँ मैंने कौन सा किया है, यहाँ मैंने 95 किया है. So now we'll go for 99%. Okay, हम 99% जाते हैं. We haven't been to 99%, right? 99% का करते हैं. So this will be my, so how much will be my alpha? Alpha will be how much? Alpha by 2 will be 0.5%, which is equal to 0.005. Okay, so I need to calculate for 1 minus this value, 0.995. So refer this in t score. Refer in t score. Okay, okay, this I need to refer in t score. Then okay, so now I'll be showing the t score. 1 second. So can someone help me? I have shared the t score in the group, I guess. So you can check and please tell me what is the t score for 0.995 alpha by 2 and this thing. What do we say? Alpha by 2 to 0.05 है. 0.005
एंड आर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 16, तो 16 और 0.005 वाले कॉलम में हमें क्या वैल्यू मिल रहा है वो देखिए एक बार. So, is my screen visible? This is the T score table. Okay. So it is 2.921 over here. Okay. So I'll go back to the previous one. So it is 2.921. My T score is 2.921. Okay. So now what we have to do is, now this is our formula, right? ये हमारा formula है. So x bar minus y bar plus minus t of this and root over this. Okay. हमने तो इसका रूट ओवर निकाल लिया था, राइट. स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मिल चुका है. सो रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी दिस multiplied by t score. Oh, sorry, not this. Oh my god. Multiplied by 2.921. Okay. This will be our reliability factor. Now, what they are asking after reliability factor, this is our reliability factor multiplied by standard error. Now, x bar minus y bar they are asking. Okay. So, my pooled standard deviation is this. Oh my god, why it is showing 0? I need to copy it. Okay. That is 0.2238 something. Okay. Now, I need to do that x bar minus y bar. So, I need its x bar minus y bar. So how much it will be? This minus this. That is $0.70. So x bar minus y bar, it is asking me to add it. Okay, add it with for maximum and subtract it with for minimum. Okay, so x bar minus y bar तो 0.7 मिल गया. So 0.7 minus this value will be my minimum wala thing, confidence interval for two difference of two means. Okay, दोनों के मीन का डिफरेंस चाहिए हमें, दोनों के मीन का डिफरेंस चाहिए. तो 0.7 माइनस where it is, yes, this is 0.7 minus my pool this thing. So this is my min range, this is my max range when I just add it. Okay, so 0.7 plus this thing. Okay, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं इसके, ये तो सैंपल है ना हमारा, इसका अगर मैं ओरिजिनल पॉपुलेशन ले लूं और इसका भी मैं ओरिजिनल पॉपुलेशन ले लूं, दोनों के पॉपुलेशन का जो मीन होगा दैट इज म्यू. ओके, म्यू एक्स ले लो, ठीक है, एंड म्यू ऑफ वाई. ओके, म्यू वाई ले लो, ठीक है. सो म्यू एक्स और म्यू वाई जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझको ये रेंज में आएगा 0.046 कॉमा 1.35 समथिंग. ये जो भी लिखा है ना ये आप देख लीजिए. सो आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट ये दोनों के मीन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सो आई विल बी गेटिंग दिस रेंज. दैट मीन्स न्यूयॉर्क के एप्पल का एवरेज एप्पल रेट, दैट मीन्स एवरेज एप्पल रेट न्यूयॉर्क में ज़्यादा है. ओके, कितने से ज़्यादा है? 0.046 से लेकर के 1.35 तक ज़्यादा हो सकता है एवरेज रेट, और एलए का उतना ही सस्ता है. ओके, सो दिस इज चीपर, दिस इज कॉस्टलियर. ओके, नाउ दिस इज इट. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा अगला टॉपिक क्या था?
Our next topic was this, right? Our next topic is this one. Our next topic is this. Here we won't be solving any example over here. Okay, we have completed this. ये population variance known था, ठीक है. इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. और ये डिपेंडेंट था. डिपेंडेंट में हमें मैग्नीशियम कंटेंट इन द ब्लड करना था. एज्यूम दैट यू आर अ डॉक्टर एंड वो mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजर हो रहा था. उसका हमने डिफरेंस ले लिया सिंपली, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट थे, क्योंकि हम एक ही आदमी को रेफर कर रहे थे. इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान था. यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि हमें बस वेरिएंस पता है और सैंपल का साइज पता है. एग्जैक्ट सैंपल हमें पता नहीं है एंड एग्जैक्ट पॉपुलेशन भी हमें पता नहीं है. सो हियर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का था. अब इधर क्या हुआ, यहाँ न्यूयॉर्क का एप्पल का प्राइस और लॉस एंजल्स का एप्पल का प्राइस का डिफरेंशिएशन हमने किया था. मतलब कितना फर्क आता है दोनों के मीन को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो. ओके, दिस इज इट. नाउ विल बी गोइंग फॉर लास्ट वन. हियर देर आर नो सैंपल, बिकॉज वो आप पे है, क्योंकि आप क्या एज्यूम करते हो. यहाँ हमने एज्यूम किया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है. अगर आप एज्यूम करते हो कि दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए सिर्फ आपको पॉपुलेशन उसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला लगा के उस पॉपुलेशन वेरिएंस के हिसाब से आपको सॉल्व करना है. दैट इज इट. ओके, यू डोंट नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, तो आपको वो माइंड में रख करके सॉल्व करना है. तो यहाँ दोनों में टी स्कोर ही आएगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है. सो हियर विल बी गोइंग फॉर टी स्कोर. ओके, हियर हमारा टी स्कोर आएगा. ओके, होप एवरीथिंग इज बेटर, क्योंकि यहाँ जेड स्कोर आएगा, यहाँ दोनों में टी स्कोर आएगा. नाउ we'll go for the next one. So these both are completed. This is it. इसमें कोई आपको ये नहीं है, डेटा सेट्स नहीं है. ओके, एंड इट वोंट बी एनीथिंग फॉर क्या बोलते हैं, यू डोंट हैव टू एज्यूम, लाइक मतलब आप एज्यूम आपके एसम्पशन पे डिपेंड करता है. सो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट कि उधर क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए कि मतलब आपको क्या एज्यूम करना है. इट इज योर एसम्पशन. आपके एसम्पशन से आंसर वेरी कर सकता है. सो हियर वो एक और आता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है. सो व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज, आई जस्ट मेंशन इट डाउन. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ना, तो मैं बोल देता हूँ. एक्स बार इज सैंपल वन का मीन, ठीक है, सैंपल वन का मीन. ओके, वाई बार इज सैंपल टू का मीन, सैंपल टू का मीन. ओके, what is v? This is degree of freedom, degree of freedom. Okay, what is alpha? हमने तो बोला था alpha is a unsureness, ठीक है, unsurety बोल सकते हैं, unsureness बोल सकते हैं, ठीक है. Okay, that is alpha. That is defined by 1 minus confidence percentage. Okay, confidence percentage. एस एक्स का स्क्वायर बोले तो सैंपल द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट सैंपल का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल का स्क्वायर, फर्स्ट का, ठीक है, उसका स्क्वायर. तो सिमिलरली वाई का भी वैसा ही है, उसमें सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अभी ये v तो मैंने आपको बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर्मूला. सेम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स इन x, पहले वाले इसमें नंबर ऑफ सैंपल, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर अपॉन दिस नंबर ऑफ सैंपल इन y, मतलब सेकेंड वाले में उन दोनों का फिर कपल करके स्क्वायर कर रहे हैं. देन ये कैसा है पता है क्या? ये मैं फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला, यू जस्ट नोट इट डाउन ना. ये मैं डिनोमिनेटर पूरा लिख रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन.
सो इसका फिर आपको स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय nx-1। ये ब्रैकेट कंप्लीट। इसको ऐड करना है, सेम फॉर्मूला है, बस y डाल देना है। ओके, y का स्क्वायर अपॉन ny। ओके, डिवाइडेड बाय ny-1। ओके, दिस इज इट। ये इसका डिनोमिनेटर है। अब ये इसके न्यूमरेटर में तो बस यही है, इसका प्लस ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है इतना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई जस्ट इरेज एवरीथिंग, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। वैसे रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। ओके, सो दिस इज इट। नाउ we'll go for the next important topic, that is hypothesis testing. Okay, hypothesis testing. So today I'll just give you an intro about this. I won't teach you everything about this. Okay, I'll just give you an intro about this कि क्या रहता है, कैसे होता है and all. Hypothesis testing कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस में आपको समझाता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है कि वो रेंज देता है ना पैरामीटर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मीन निकालना था, इफ़ यू वांटेड अ मीन, ठीक है, ये समझो आपका इतना बड़ा है, आपको एक मीन चाहिए, तो वो क्या बोलता था, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता था, वो डायरेक्टली एक रेंज देता था कि ये दोनों के रेंज के बीच में है, दैट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, ये दोनों के रेंज में आता है। ओके, ओके, सो सिमिलरली हाइपोथेसिस गिव्स क्या 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 देता है, वो यस या फिर नो देता है, वो इंटरवल नहीं देता है, वो हाँ या फिर ना बोलता है। ये कहाँ यूज होता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। एआई, मशीन लर्निंग, ये डेटा साइंस खत्म करने के बाद आप मशीन लर्निंग भी सीख सकते हो। लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लर्न। ये आपको सीखना चाहिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड ऑल। ओके, सो for the first step is to formulate a hypothesis. Second is to find the right test. Third is to execute the test. Fourth is to make the decision. पहले hypothesis formulate करते हैं। कैसे formulate करते हैं? Wait a second, I'll erase all the drawing. I'll proceed for the next slide. Okay, now अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब एक स्टेटमेंट देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गिविंग द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस इज एन आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड। एक ऐसा आइडिया है कि मैं किसी को पूछता हूँ, सर या मैडम सर, आप का एज क्या है या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो अगर उन्होंने 3 बोला, बल्कि असली एक्सपीरियंस उनका 5 है, पर्पसली उन्होंने 3 बोला, तो मैंने क्या समझा कि ये 3 मेरा हाइपोथेसिस है, तो इसको मुझे सच है या झूठ है मुझे टेस्ट करना है, राइट। सो हाइपोथेसिस इज एन आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड। ओके, सो न्यूयॉर्क में एप्पल का प्राइस एक्सपेंसिव है, ऐसा मैं बोलूं, सो इट विल बी अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ थिंग, ये डेटा ही नहीं है ना इसमें। क्या डेटा दूंगा मैं आपको, मतलब ये न्यूयॉर्क के एप्पल के प्राइस एक ज़्यादा है, तो कैसे ज़्यादा है, वो हर किसी के लिए वैरी कर सकता है ना। जैसे मेरे लिए 10,000 रुपये महंगा होता है, आपके लिए 50,000 रुपये महंगा हो सकता है, किसी और के लिए 1 लाख रुपये महंगा हो सकता है, बल्कि 10,000 रुपये छोटा हो सकता है। हर किसी के लिए महंगा कम वेरी करता है। तो इट इज़ नॉट अ आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड। ये रफ डेटा से हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें डेटा ही नहीं है। सो वॉट वी डू इज, अगर मैं इसको ऐसे ही बोल दूं, द प्राइस ऑफ एप्पल्स इन न्यूयॉर्क आर मोर एक्सपेंसिव दैन $1.75 या फिर $1.75। So it won't be a statement, it will be a hypothesis simply. It will be a hypothesis. ठीक है, if I say that Apple is more expensive than $1.75, it will be hypothesis, क्योंकि मैं एक hypothesis लगा रहा हूँ, एक आइडिया है, डेटा के साथ लगा रहा हूँ।
दैट इज एन हाइपोथेसिस. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पूछता हूँ, नाउ एवरीबॉडी विल टेल मी, ओके, कि क्या है हाइपोथेसिस और क्या नहीं है हाइपोथेसिस. ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में बिल क्लिंटन और सॉरी मिसेस क्लिंटन एंड मिस्टर ट्रम्प इज देयर. ओके, सो उन दोनों के रूल में अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए वाज बेटर. अगर मैं ये एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इसमें मैं हाइपोथेसिस लगा सकता हूँ? यस और नो, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. मैंने आपको पिछला एग्जांपल बताया था. इट इज एक्चुअली नो, बिकॉज यहाँ इशू क्या है कि मिस क्लिंटन अब तक तो प्रेसिडेंट बनी नहीं है. ओके, एंड मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने अब तक अपनी प्रेसिडेंटशिप खत्म किया नहीं है. तो हम हाइपोथेसिस लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है. परफेक्ट. सो वी कैन नॉट apply the hypothesis because it has no data, it cannot be tested, so it is not a hypothesis. Okay, now I'll ask you the simple question. So Mr. Obama और मिस्टर जॉर्ज बुश, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएसए बेटर था? इकोनॉमिकली बोल सकते हो, हेल्थ रिलेटेड बोल सकते हो, बेटर था या नहीं. यहाँ में हाइपोथेसिस क्या होगा? यस, इट इज hypothesis. Since both of them have completed their administration, the data can be tested. क्योंकि दोनों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन खत्म किया है. बोथ हैव डन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दोनों का प्रेसिडेंटशिप ओवर हो चुका है. हाँ, वो फर्क है कि ये 8 years तक थे, ये सिर्फ 4 years तक थे या 6 years तक थे, आई डोंट नो. बट स्टिल दे हैव डन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट प्रेसिडेंट एनी मोर, बट स्टिल द डेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, ये कंप्लीटली पॉलिटिकल इशू हो जाता है. सो लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. यहाँ मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेन डेटा साइंटिस्ट की सैलरी $1,13,000 है. ओके, डोंट कन्वर्ट इट टू रुपीज. अभी मुझे आज का डॉलर रेट कुछ पता नहीं है, मे बी 76-77, तो वो वेरी करता है. ओके, सो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीज, जस्ट रिमेंबर $113,000. ओके, $113,000 इन यूएस. तो ये अमेरिका में डेटा साइंटिस्ट का ये सैलरी होता है एवरेज. ऐसा ग्लास डोर मेरे को बोल रहा है. कौन बोल रहा है? ग्लास डोर करके एक वेबसाइट है जो कंपनीज का एवरेज पैकेज बताता है. ओके, वेयर करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज रेट देयर एम्प्लॉयर्स एंड सी लेवल मैनेजमेंट, ऑल डेटा इज सेल्फ रिपोर्टेड. ठीक है, सेल्फ रिपोर्टेड होता है. ग्लास डोर के बारे में मैंने लिखा भी है, इस वो वेबसाइट है जिसमें ओके वो डेटा डाला रहता है. तो यहाँ मेरा हाइपोथेसिस कैसा होगा और नोटेशन क्या होता है? नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ मेरा ऐसा मुझे ग्लास डोर ने बोला है, ये सही है या गलत है मुझे देखना है. तो मैंने क्या किया, नल हाइपोथेसिस मतलब जो अभी अवेलेबल है. ठीक है, मैं तो ब्लैंक हूं ना, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है. ऐसा समझो कि आप ब्लैंक हो तो आप नल हो इसके सामने. लाइक यू डोंट हैव एनी डेटा अबाउट दिस, यू हैव नल डेटा अबाउट दिस. आपके पास कोई डेटा ही नहीं है समझो. ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है भाई ग्लास डोर बता रहा है तो मैं बिलीव कर लेता हूँ. सो H0 क्या बोलता है? H0 डबल डॉट म्यू नॉट, मतलब I am putting a hypothesis that mu naught, that is average, equals to 113,000 US dollars. क्या बोल रहा हूं? नल हाइपोथेसिस है मेरा कि मैं इसको सच मान रहा हूं. क्या मान रहा हूं? सच कि 1 सेकेंड, हाँ यस, क्या मान रहा हूं? सच कि इसका ग्लास डोर का डेटा सही है करके मैं सच मान रहा हूं. लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होना चाहिए ना, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. तो मैं ये अल्टरनेटिव में सोच रहा हूँ भाई ये झूठ भी हो सकता है. तो आई एम पुटिंग H1 और HA. आप इसको H1 बोल सकते हो या HA बोल सकते हो. म्यू नॉट इक्वल्स टू, इट्स नॉट इक्वल टू $113,000. ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इक्वल टू नहीं हो सकता. क्योंकि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है मुझे पता नहीं. या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्लासडोर ने कोई एक कंपनी में जाके पूछ के आ गया और समझ लिया कि पूरे अमेरिका में हर एक कंपनी का ऐसा है. सो वी कैनॉट डू इट लाइक दैट, राइट? तो यहाँ हम कभी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जब म्यू इज क्लोज इनफ टू द ट्रू मीन म्यू. म्यू नॉट इज क्लोज इनफ टू द ट्रू मीन म्यू. ये म्यू नॉट हमारा क्या है? $113,000 है. अभी अगर असली में जब हमने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद अगर मुझे ऐसे मिलता है 1 2, सॉरी 1 सेकेंड, नॉट 1 2, अगर मुझे ऐसे मिलता है लाइक 1 1 2 999 या फिर 900, ज़्यादा दूर नहीं है, $100 का फर्क है. $100 अगर आप कन्वर्ट भी करोगे तो 7,000 8,000 के बीच में आएगा.
इट्स नॉट दैट डिफरेंस, हाँ इतना डिफरेंस नहीं होता है, पर एनम में डील कर रहे हैं। तो 12900 आ गया, या फिर 112,999 आ गया, समझो ज़्यादा ही क्लोज हो गया। तो मैं ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आई कैन एक्सेप्ट दिस, आई कैन एक्सेप्ट दिस। वेर एस अगर मेरे को अगर ऐसा वैल्यू आ रहा है 120,000, आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस, I cannot accept this because it is not at all close to or approximately equal to this $113,000. ओके, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राउंड ऑफ है, हाँ सिंपल क्वेश्चन है ये, राउंड ऑफ। अभी रिजेक्ट कब करूंगा मैं, जब ये ज़्यादा दूर है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं है। $7,000 बोले तो 6 महीने का भाड़ा रहेगा अमेरिका में। कोई भी घर आप लोगे तो 6 मंथ्स का रेंट रहेगा। ओके, $7,000 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। के 6,000 और 6 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स, द एरिया वेर यू लिव, उतना फर्क आता है। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू एक्चुअली कन्वे, कि मतलब एक्सेप्ट कब करना है, रिजेक्ट कब करना है। या फिर अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप ये रेफर कर सकते हो। समझो कि जज है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। कोई भी कोर्ट में जाओ, कोई भी एक्यूज वाला रहता है बंदा, वो इनोसेंट तब तक रहता है जब तक वो दूसरा जो लॉयर रहता है उसके अगेंस्ट, वो उसको तब तक गिल्टी प्रूव नहीं करता है। और पूरी जजमेंट अगर उसे गिल्टी मानती नहीं है, वो तब तक इनोसेंट है। ओके, एच नॉट इज ट्रू अंटिल रिजेक्टेड। समझ रहे हो? जब तक मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया तब तक यही मेरा सही है। जब तक मुझे ये समझा नहीं, जब तक मुझे पता, मैंने ये टेस्ट, मैं जब तक ये टेस्ट प्रोसीड नहीं करता हूँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच है या नहीं, तब तक यही मेरे लिए ट्रू है। ओके, तब तक ये मेरे लिए सही है। ठीक है, ये समझो एक बंदा है, तो मैं तब तक इसको अच्छा ही आदमी मान रहा हूँ जब तक मैं दूसरे आदमी से इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, या फिर तब तक मैं उसको गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, तब तक ये मेरे लिए सही है। Okay, until and unless I am not proving that it is not equal to $113,000, I should consider that it is $113,000. Okay, so similarly अगर मैं $125,000 बोल दूं, यहाँ मैं $125,000 बोल दूं कि इससे ज्यादा होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि 125,000 से $125,000 से ज्यादा होगा, लेकिन मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैंने तो यहाँ ग्रेटर देन बोल दिया है। ग्रेटर देन मतलब 125,001 भी हो सकता है, फिर ये लेस देन इक्वल टू मतलब 125,000 भी चल सकता है मुझको। दैट इज माई अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मैंने आपको बोला था वन का मतलब क्या होता है, दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, वो आप लिख देना, ALT लिख रहा हूं मैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, तो यू जस्ट नोट इट डाउन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अभी शैल वी प्रोसीड विद दिस? और ओके, अभी मैं एक यूके यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ठीक है, ग्रेड्स है यूके यूनिवर्सिटी में। सो क्या है कि जो पुराने डीन थे, अभी समझो नए डीन आ गए कॉलेज में। समझो ये आप ही का कॉलेज चल रहा है, कंसिडर AISSMS और JSPM और एनी 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 कॉलेज, पुणे यूनिवर्सिटी समझ लो। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी, ग्रेड्स इन पुणे यूनिवर्सिटी। तो आपके नए वाले यूनिवर्सिटी डीन को क्या लगता है कि ज़्यादा बच्चे लाइब्रेरी में दिख रहे हैं मुझको? ये नए यूनिवर्सिटी डीन है, ये नए है, न्यू है, ज़्यादा बच्चे मुझे लाइब्रेरी में दिख रहे हैं, तो इसीलिए मेरे कॉलेज का एवरेज 70% होगा, ऐसे उनको लगता है। ठीक है, तो इस केस में पुराने ओल्ड डीन जो थे, उन्होंने इनको फ़ोन किया, बोला कि सर आप क्या कह रहे हैं, आप 70% नहीं है, 56% है। ये बोले कि सर मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है 70% होगा। उन्होंने बोला नहीं सर, मैंने एक्सपीरियंस किया, 56% है। तो अभी हमारा क्या जॉब है कि हमें पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन एक्चुअल डेटा ये है जो हमें पता नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है कि एक्चुअल डेटा 55% है। इस केस में तो ओल्ड डीन भी गलत है, नए वाले डीन भी गलत है, लेकिन ओल्ड डीन ज्यादा क्लोज में है। 1% कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, 1% से इतना फर्क नहीं पड़ता है। लाइक ये 55% भी जो बोल रहा है, अगर ये 55.1 रहा तो भी 55 होता है, 55.5 रहा तो 56 भी हो सकता है। तो ओल्ड डीन बोल रहे हैं कि 56% सर है। सो द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। इसमें हमें क्या करना है, अल्फा है, ये अल्फा, जो अल्फा है ना, वो सेम अल्फा जो कॉन्फिडेंस वाला था ना, वो सेम अल्फा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ मेरा
ग्रेड नल हाइपोथेसिस मैंने क्या किया, मैंने ओल्ड डीन को मान लिया, समझो मैंने पुराने वाले डीन को मान लिया, बोला कि सर आप ही सही हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, तो मैंने उनके डेटा को बिलीव किया। लेकिन उनका डेटा गलत भी हो सकता है, मे बी ही इज टॉकिंग विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च विच इज एक्चुअली डूइंग। उनके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं, अगर प्रॉपर रिसर्च होता तो वो सीधा ट्रू मीन बोलते थे, उन्होंने चेक नहीं किया, मे बी उन्होंने पिछले साल का चेक किया होगा, इस साल का ऐसे एज्यूम कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है। ये अल्फा क्या है, ये वाला जो एरिया जो रिजेक्टेड रीजन है उसको अल्फा बोलते हैं, दिस इज अल्फा बाई टू। द सम ऑफ रिजेक्टेड रीजन इज अल्फा, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं, इवन इन कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इसको रिजेक्ट करते हैं, राइट। अल्फा को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अभी अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ से यहाँ है और यहाँ थोड़ा सा अल्फा है और यहाँ थोड़ा सा अल्फा है, हम दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं और बीच का इंटरवल देते हैं, राइट। वी जस्ट गिव द इंटरवल, ये बीच का इंटरवल हम देते हैं, ओके। सो द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम पूरे अल्फा को रिजेक्ट कर देते हैं, ओके। सो नाउ अल्फा का जैसे मैंने बोला अल्फा बाई टू, ये सॉरी अगले स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया था, आई थॉट मैंने इंक्लूड नहीं किया। सो अल्फा इक्वल्स टू 0.01, 0.01 मतलब क्या होता है, 0.01 मीन्स 98%, ओके, दिस इज 0.05 मतलब 90%, एंड दिस इज 80%, क्योंकि हम अल्फा बाई टू करते हैं ना, ओके। सो इफ इट इज अल्फा, इट ओके, इट इज ओनली गिवन एज अल्फा, इफ इट बी अल्फा बाई टू तो फिर जो भी मैंने वैल्यूज बोले हैं वो है। अभी अल्फा है तो फिर दिस वुड बी 99%, दिस वुड बी 95% एंड दिस वुड बी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल से कंफ्यूज मत होना, इट इज जस्ट अ सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। अल्फा के बेसिस पे ही रिजेक्ट हो सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी नए वाले डीन ने क्या बोला, 70%, ये तो रिजेक्टेड ही है ही, ये तो पक्का रिजेक्टेड है, ओके। सो ग्रेड्स इन यूके यूनिवर्सिटी, इन्होंने अभी हमने क्या किया कि हमें पता तो चल गया इतना कि अभी ओल्ड डीन पे तो इतना विश्वास आ गया, तो हमें थोड़ा बहुत रिजेक्टेड रीजन से थोड़ा आइडिया मिल गया कि ये इससे कम ही रहेगा, ओके। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये मेरा सही हाइपोथेसिस है, तो ये झूठ भी हो सकता है, इसीलिए गलत हाइपोथेसिस है। तो अभी पॉइंट क्या है कि ये वन साइडेड है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज टू साइडेड एंड व्हाट इज वन साइडेड। ये था टू साइडेड क्योंकि अल्फा बाई टू डिवाइडेड हो गया था ना, दोनों तरीके से, दोनों जगह पे रिजेक्टेड है। अगर किसी ने मुझे बोला होता कि किसी और डीन ने बोला होता कि सर कॉलेज का एवरेज 23% है, सारे बच्चे फेल ही होते हैं हर साल, तो अगर ऐसा बोला होता तो वो भी रिजेक्टेड था, दोनों गलत है। 70% बोला वो भी गलत है क्योंकि रिजेक्टेड रीजन में अल्फा बाई टू में। सो दिस इज टू साइडेड, टू टेल्ड बोल सकते हैं या फिर टू साइडेड बोल सकते हैं। दिस इज टू साइडेड और टू टेल्ड, ठीक है, दो टेल है इनको। आपको पता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक इस तरफ का टेल होता है, इस तरफ एक टेल होता है, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ऐसे आएगा, अगर आपको वेरिएंस कुछ भी पता ही नहीं है तो ऐसे आएगा, उनका फैटर टेल्स होता है, दोनों तरफ से होता है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स एज मच एज पॉसिबल। तो उनका फैटर टेल्स होता है, मोटा होता है उनका टेल, क्योंकि उसमें अनसर्टिनिटी ज़्यादा होता है। इसमें जितना टेल कम हो, जितना टेल का विड्थ कम हो, उतना कम अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है। अल्फा बाई टू मीन्स द एरिया, ये वाला एरिया अल्फा बाई टू है, सॉरी यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक। सो ये एरिया अल्फा बाई टू है, सिमिलरली ये वाला एरिया अल्फा बाई टू है, ओके। दोनों को जब आप ऐड करते हो यू गेट द अल्फा, अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू इज अल्फा, ओके। तो हमने क्या किया, अभी इतने सर ने तो इतना डिमांड किया, बोला कि चलो 70% नहीं है तो 70% के नीचे ही होगा। ओल्ड डीन और नए डीन में झगड़ा आ गया, बोला कि सर ठीक है सर मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन 70% नहीं है, उसके नीचे है। तो हमने क्या किया, फिर से हमने ओल्ड डीन को प्रेफरेंस दिया और हमने समझा कि ठीक है अभी हम ये हाइपोथेसिस लगाते हैं कि ये 70% के नीचे है, ठीक है। अभी अभी मैं आपको एक और चीज बोलना भूल गया, सॉरी सॉरी, एक और चीज बोलना भूल गया मैं, वन या ये तो 70% है और ये 55% है, ठीक है। ये रिजेक्टेड रीजन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा केस भी हो सकता है, समझो कि ये भी एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। समझो मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा है, तो समझो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टूडेंट्स ट्री नहीं है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। मोटा है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्टूडेंट्स ट्री बना लिया है, गलती से मोटा हो गया।
सो समझो ये मेरा अल्फा बाई 2 है, ठीक है, और समझो ये मेरा अल्फा बाई 2 है, ठीक है। मैं यहाँ शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दिस इज माई अल्फा बाय 2, दिस इज माई अल्फा बाय 2। ओके, तो ये वाला 70 यहाँ भी तो आ सकता है। इफ माई ओरिजिनल मीन इज, हमें ओरिजिनल मीन पता नहीं है ना क्या है। ओरिजिनल मीन हमारा 80 भी हो सकता है, सारे बच्चे 80% स्कोर कर रहे हैं, या फिर इतने ज्यादा टॉपर्स हैं कि सबका एवरेज का स्कोर 80 में आ रहा है, और ये वाला तो 94 के ऊपर है समझो, 90 के ऊपर है समझो, तो 90 के ऊपर तो रिजेक्टेड है। ये तो पक्का पता है कि 90 में रिजेक्ट हो रहा है, 80 70 में रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन 80 के आसपास है। तो ये इस तरफ भी रिजेक्ट हो रहा है और ये इस तरफ भी रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अल्फा बाई 2 इज रिजेक्टिंग 70% फ्रॉम बोथ साइड्स इफ यू हैव टू assumptions, एक 80% और 55%, आपके पास दो assumptions, सॉरी 56 और 80% दो assumptions है, तो वो दोनों इसमें रिजेक्ट कर रहा है। बस इतना फर्क है कि ये राइट साइड में इसको रिजेक्ट कर रहा है और इसको लेफ्ट साइड में रिजेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? अगर ये लेफ्ट साइड में रिजेक्ट कर रहा है मतलब यू शुड मूव टूवर्ड्स राइट, और अगर ये राइट साइड में रिजेक्ट कर रहा है यू शुड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। इसीलिए हमने क्या किया, ये किया, क्योंकि हमारा डेटा ऐसा है, यहाँ राइट साइड में रिजेक्ट हो रहा है ना, तो हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है। लेफ्ट मतलब लेस देन 70। सो हमने ओल्ड डीन की तो बात सुन ली कि सर ठीक है, आप इतना आर्ग्यू कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ही डेटा सही हो सकता है, तो हम 70 के नीचे का हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, ये वन साइडेड टेल हो गया, ये अल्फा हो गया मेरे लिए। तो ये देखो, ये एरिया बढ़ गया, दोनों टेल जो था हमारे पास उसका एरिया और इसका एरिया बढ़ गया, क्योंकि हमने लेस देन 70 बोला है। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व हाइपोथेसिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, और H1 ये है कि वो झूठ भी हो सकता है, इसीलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कर लिया, ठीक है। नाउ ये राइट साइड में, अगर यही मैंने ग्रेटर देन 70 बोल दिया होता तो ये राइट साइड में रिजेक्ट हो जाता। ओके, आर यू गेटिंग इट? ये दोनों में देखो फर्क है, ग्रेटर देन 70, लेस देन 70, तो मुझे लेस देन इक्वल टू 70% में जाना है, तो मतलब ये आसपास ही है, यही है, इस तरफ ही आ रहा है। लेकिन यही अगर यहाँ इस तरफ रिजेक्ट हो रहा है, ज्यादा कम आ रहा है, तो मुझे ये समझना है इस लेस देन द रिजेक्टेड रीजन के भी नीचे है, मतलब 55 से भी नीचे जा सकता है, लेकिन इस केस में 55 से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ इस ये 55 से 70 के बीच में आना वैल्यू सही हो सकता है। ओके, दिस इज द पॉसिबिलिटी कि 55% के ऊपर आ सकता है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 70 करके एक नल हाइपोथेसिस डाला है। ओके, बट आर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वर्किंग ओवर हियर बिकॉज दिस अल्फा इज गेटिंग रिजेक्टेड ओवर हियर। ठीक है, समझ रहे हो, हमारा ये रिजेक्ट हो गया तो हम इसमें चले गए। ओके, नाउ वील डिस्कस टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।